Hey guys, welcome to my YouTube channel Gupshup with NCRT. In this series, we are going to start human physiology part of class 11th NCRT of biology. In this, we will complete all the chapters of class 11th biology as well as of class 12th. And moreover, this series is very important for the students who want to secure 360 out of 360 in biology section of NEET exam of 2022 and moreover for 2023. As in NEET examination, we all know that biology for the biology section NCRT is more than enough. If you want to secure full marks, that is 360 out of 360 in NEET for in the biology section, then NCRT is more than enough. You have to mug up each and every line of NCRT. Not only mugging up is important, understanding is also very important. So here I will read each and every line of NCRT of each and every topic. You have to just do is close your eyes, use your headphones, and now relax, sit in a relaxed mode, close your books, close your eyes, and just listen to my readings. After listening to my reading of each and every topic, it will consist of 40 to 45 minutes. Each and every lecture will be of 45 minutes. So after listening to my recording, you have to just do is that open your books and make a one reading. As क्योंकि अगर आप प्रॉपर रीडिंग कर बस मेरी वॉइस से प्रॉपरली सुन लोगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको, उसके बाद एक बार आप रीड कर लेना और दैट्स इट. ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. रोज़ रोज़ ऐसा करेंगे हम तो इन 3 to 4 months हम बोथ क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और तो मज़ेदार होगा. आई होप आप सबको मज़ा आएगा. ठीक है, सो अब हम आपस में ज़्यादा गपशप ना मारें, एनसीईआरटी के साथ गपशप मारें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना. क्योंकि एनसीईआरटी के साथ गपशप मारेंगे फिर ही हमें मार्क्स मिलेंगे नीट में अच्छे. सो भगवान जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. Digestion and absorption is a very important, very important chapter because in each and every year 3 to 4 questions come up from this chapter. So you can say minimum 4 into 4 16 marks, or if negative marking is done, अगर आपका wrong हो गया है ना तो 20 marks तो जाएंगे. So 20 marks से आपका रैंक कितना ज़्यादा ऊपर नीचे जा सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, so let's start. Okay. So, digestion and absorption. Food is one of the basic requirements of all living organisms. The major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. Highlight कर लो या बाद में. So ये याद रखना कि major components बोला हुआ है, minor. Major components of our food are carbohydrates, proteins and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities, that is minor components हो जाते हैं. Vitamins and minerals are minor और small quantities में चाहिए, और carbohydrates, fats and proteins जो है वो major components of our food होते हैं. ठीक है, vitamins and minerals are required in small quantities. Food provides energy and organic matter for growth and repair of tissues. बिल्कुल, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, है ना. और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है फॉर ग्रोथ के लिए भी खाना चाहिए और रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए भी, है ना. तो वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. सो जो हम पानी पीते हैं ना, पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है. 15 क्लासेस कहते हैं वो 1 day में पीनी चाहिए वाटर की. वो क्यों? बिकॉज ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देता बॉडी की, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी में. याद रखना, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से कॉलरा हो जाती है. ओके, कॉलरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज, वो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में करेंगे. अभी के लिए इतना याद रखो. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कॉजेज कॉलरा. Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form.
बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन आवर फूड। अब हमने ऐसे बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स लिए वो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकते ना, उनका पहले डाइजेशन करना पड़ेगा। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into simpler substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion. ये बोर्ड्स के पॉइंट, बोर्ड्स तो +1 के चलो नहीं होते, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 मार्क में आपको डेफिनेशन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। सो सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex food substances to simple absorbable forms is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. मैकेनिकल कौन सा, हम च्यू कर रहे हैं, है ना, तो चूइंग कर रहे हैं, स्वेलोइंग कर रहे हैं, तो हमारी स्टमक पे जो चर्निंग मूवमेंट्स होगा, ये सारा क्या, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल कौन सा, जो एंजाइम्स की हेल्प से स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, है ना, डाइसेकेराइड्स का, प्रोटीन का डाइजेशन, वो बायोकेमिकल, वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सो डाइजेशन जो होती है वो बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल मेथड से होती है। ठीक है, याद रखना है। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर, एनसीईआरटी हमारी बुक में, हमारी बाइबल में पेज नंबर जो हमके चैप्टर का 258 पेज नंबर है, सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। सो अब रीडिंग के बाद एक बार जब आप लिसनिंग बार सुन लेंगे, उसके बाद आप एक बार ये देख लेना, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड डायग्राम है, सिंपल सा है। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ है, हमारा फेरिंक्स कहाँ है, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियास, जेजुनम, डिओडेनम, कोलोन, ये सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम्स के लिए मैं एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ह्यूमन फिजियोलॉजी सारी हो जाए, फिर उसके डायग्राम्स के आपको ना डायग्राम्स के लिए अलग रिकॉर्डिंग बना दूंगी जिसमें प्रॉपरली डायग्राम्स पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी के लिए आप ये सुने। सो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइनर और जो रिक्वायर्ड है स्मॉल क्वांटिटीज में वो कौन से है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर किसके लिए चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। ओके, डेफिशिएंसी वाटर से कॉलरा हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। और डाइजेशन इज अ बोथ मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ओके ओके जी, चलो आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चीज़ें होती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल करते हैं। वैसे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को सुनना है ना, अगर मेंशन करना है तो कर सकते हो। 8.2 to 8.3 मीटर्स होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8.3 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग माउथ। एंटीरियर हमारी ऊपर वाली, ठीक है, एंटीरियर आगे वाली, एंटीरियर ओपनिंग द माउथ and it opens out posteriorly through the anus, बिल्कुल। The mouth leads to the buccal cavity और oral cavity। माउथ हमारा ये बाहर वाला, जो हमारे लिप्स नहीं होते, लिप्स जो कवर कर रहे हैं, लिप्स को खोल के देखो, ओपन करो, तो ये जो हमारी ओपनिंग है ये माउथ है। उसके अंदर जहाँ टीथ्स है, हमारे टंग है, वो सारी ओरल कैविटी होती है। ठीक है, माउथ हमारा जो लिप्स ने कवर किया हुआ है वो माउथ है, उसके अंदर हमारी ओरल कैविटी और बकल कैविटी आ जाती है। ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। गुड। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारा ईच एंड एवरी टूथ जो है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट, बिल्कुल। अब हमें डेफिनेशन पूछ सकते हैं, अब हमें ऐसे डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकोडोंटाइटेशन। सो थिकोडोंटाइटेशन का मीनिंग क्या है कि ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, है ना, ये हमारी थिकोडोंटाइटेशन होती है। Majority of mammals, including human beings, form 2 sets of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth
रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। हमारी लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। जब हम चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी लाइफ में जो टीथ का सेट होता है वो होते हैं मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, ठीक है। और एक होते हैं परमानेंट टीथ जो हमें एडल्ट एज में तक आने में आ जाते हैं, ठीक है। सो जो प्राइमरी टीथ होते हैं ना, जो मिल्क टीथ होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। सो 2 होता है इंसीजर्स के लिए, 1 होता है कैनाइन्स के लिए, 0 होता है प्रीमोलर्स के लिए और 2 होता है मोलर्स के लिए। सो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू कि मिल्क टीथ होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन से टीथ, डेंटिशन वाला टीथ नहीं होता, उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर्स लाइफ में सिर्फ परमानेंट डेंटिशन में ही आते हैं, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो अपर जो है ना, अपर हाफ जो का, अपर जो की हाफ साइड का 2102 अपॉन नीचे वाली अपर जो की हाफ साइड का 2102 करते हैं, और अपॉन में इनको ऐड करना है, डिवाइड नहीं कर देना। 2102 कितना हो गया, 224 प्लस 1 5, 5/5 मतलब 5 + 5 कितना हो गया 10। ये तो एक साइड का हुआ, हमारी लेफ्ट का ले लो या राइट साइड का। दूसरी साइड का करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। सो 20 मिल्क टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला 2123, 2123 कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, 8 + 8 16, 16 × 32, ठीक है। और एक आता है 17 to 16 17 ईयर्स की एज में आता है। डेंटिशन का फॉर्मूला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उसमें 2122 होता है। उसमें एक लास्ट मोलर जो होता है जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, वो मोस्टली एडल्ट्स में आती है, आई थिंक 20-21 ईयर के बाद आती है। सो अब आपकी एज है 18 to 19 होगी अगर, तो आप में भी और किसी किसी में आ सकती है रेयरली, बट मोस्टली आपका डेंटल फॉर्मूला 2122 ही होगा, ठीक है। ओके, 212222, 2 + 2 4 + 2 6 1 7 + 7 14 14 20 18 हो गया आपके। लास्ट वाली जो अक्ल दाढ़ होती है वो नहीं होगी, 32 में 4 नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब रीड कर लेते हैं एक बार। सो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब कि आपकी लाइफ में परमानेंट टीथ भी आ रहे हैं और मिल्क टीथ भी आ रहे हैं, दोनों तरह के टीथ आ रहे हैं, तो ये होती है आपकी प्राइम डाइफायोडोंट, ठीक है। ह्यूमन डेंटिशन कैसे, थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या है कि हमारा जो टीथ है वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एमेंडेड है, बिल्कुल। डाइफायोडोंट का मतलब क्या है कि 2 तरह के सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, एक तो मिल्क टीथ होते हैं, दूसरा परमानेंट टीथ होते हैं। और नेक्स्ट है एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, मैंने आपको बता दिया। विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज हेटेरोडोंट डेंटिशन, नेमली इंसीजर, कैनाइन, premolars, molars. Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in order of I, C, P, M, and M is represented by a dental formula which in human beings is 2123। अगर आपको डेंटल फॉर्मूला पूछ ली, नॉर्मली कुछ भी मेंशन ना हो कि कौन सा डेंटल फॉर्मूला पूछा गया है ना, तो आपने हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही डेंटल फॉर्मूला 2123 वाला, ठीक है, तो हमने वही करना है। The hard chewing surface of teeth made up of enamel helps in the mastication of food. The tongue is freely movable, muscular organ attached to the floor of the oral cavity by frenulum. The upper surface of tongue has small projections called papillae, some of which bear taste buds. हमारे जो टंग का अपर सरफेस है ना, हमारे जो लोअर सरफेस ऑफ टंग है, आप ऐसे अपना माउथ खोलना, टंग के बिल्कुल नीचे टच करना, आपको एक ना लंब ऐसे लाइंस दिखती है, और वो जो लाइन से होते हैं ना वो फ्रेनुलम होते हैं। उस फ्रेनुलम के थ्रू ही हमारी जो टंग है वो फ्लोर ऑफ बबल कैविटी के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। और हमारे अपर सरफेस ऑफ टंग के पास कितने सारे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, पैपिले, ठीक है। उसमें से कुछ पैपिले होते हैं वो टेस्ट बड बेयर करते हैं, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको कि पैपिला विच डू नॉट फॉर्म टेस्ट बड, वो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं जो टेस्ट बड नहीं बनाते,
और सबसे बड़े पैपिले होते हैं सर्कमवेलेंट पैपिले। लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, अब याद कर लो कि फिलीफॉर्म पैपिले जो होते हैं वो टेस्ट पर नहीं फॉर्म करते। सबसे लार्जेस्ट पैपिले जो होते हैं वो होते हैं सर्कमवेलेंट पैपिले। ठीक है। और एक और चीज, हमारी जो टंग होती है ना, वो आगे उसका अगला 2/3 पोर्शन ऑफ टंग और पिछला 1/3 पोर्शन ऑफ टंग है। सो जो 1/3 और 2/3 पोर्शन ऑफ टंग को सेपरेट किया हुआ है ना, वो सक्कस टर्मिनालिस है। उसने हमारे टंग को अगले वाला 2/3 में, पिछले वाला 1/3 में सेपरेट कर दिया हुआ है। वो जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है ना, सल्कस टर्मिनालिस ने हमारे टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एंटीरियर 2/3 पोर्शन, पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन। जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन है वो तो ठीक है, उसमें हमारे पैपिले वगैरह होते हैं। जो पोस्टीरियर वाला 2/3 पोर्शन होता है ना, और जो पोस्टीरियर वाला 1/3 पे ना, राउंड सर्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल पीछे ना राउंडेड नोब्स फाउंड होते हैं। ठीक है, वो होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, वो वॉल्डेयर्स रिंग का पार्ट होता है। वॉल्डेयर्स रिंग का क्या फंक्शन है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमें एंटीजन से। ठीक है, यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया आपको, बस ये बहुत है, ज़्यादा एक्स्ट्रा करना तो है नहीं वैसे। ठीक है, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बिगेस्ट पैपिले सर्कमवेलेंट होते हैं। ठीक है, और वो वाले पैपिले जिसमें कोई टेस्ट बड नहीं होते वो कौन से होते हैं, वो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं। हमारी टंग को सल्कस टर्मिनालिस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगला इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। जो इंटीरियर 2/3 है उसमें तो हमारे पैपिले होते हैं, और जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है ना, सर्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल पीछे राउंडेड डोम्स होते हैं जिनको लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स हमारे वॉल्डेयर्स रिंग का पार्ट बनाते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एंटीजन्स। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट pharynx which serves as a common passage for both food as well as air. तो esophagus and trachea ओपन इनटू pharynx। इसोफेगस एंड ट्रैकिया दोनों किस में ओपन होते हैं, pharynx में ओपन होते हैं। ठीक है, याद रखना, इसोफेगस एंड ट्रैकिया windpipe ओपन इनटू pharynx। Pharynx serve as a common passage for both food as well as air. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into glottis. Glottis क्या होती है, opening of windpipe during ग्लॉटिस क्या होती है, ग्लॉटिस होती है ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, सो विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोनी नहीं होता, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है। होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के एंटीरियर वाली साइड है, आगे वाली साइड पे हमारी विंड पाइप होती है, और उसके बैक साइड पे हमारी फूड पाइप होती है। ये आपके डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन है, जो आपकी 16.1 फिगर है उसके ऊपर। सो जब भी हम खाना खाते हैं, स्वेलो करते हैं, डीग्लूटिनेट करते हैं, तो होता क्या है कि ऐसा चांस हो सकता है कि हमें जैसे pharynx से फूड गया, तो फूड एकदम हमारी फूड पाइप में जाने, गलेट होती है ना, उसमें जाने की जगह हमारी क्या पता हमारी विंड पाइप में चला जाए, एपिग्लॉटिस है ना, अगर तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, हमारी ना जो विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है। जैसे हम फूड स्वेलो करते हैं ना, हमारा वो कार्टिलेज का फ्लैप ना विंड पाइप की ओपनिंग को, दैट इज ग्लोटिस को कवर कर देता है। जैसे उसको कवर कर लेगा तो हमारा फूड आराम से हमारी फूड पाइप के थ्रू आगे चला जाएगा। ठीक है, सो यही है कि epiglottis prevents the entry of food into glottis, opening of windpipe during swallowing. Esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, and diaphragm, and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. ये काफ़ी बार नीट में एग्जाम में आ चुका है कि जो इसोफेगस होती है वो कहाँ ऊपर होती है, वो ऊपर होती है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में, और हम उसको स्टमक कहते हैं। स्टमक का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्टमक जे शेप होती है। ठीक है, मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कार्डियक स्फिंक्टर, regulates the opening of esophagus into stomach. कौन सा स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। The stomach located in the, सबको पता होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के
अपर लेफ्ट पोर्शन में लोकेटेड होती है, हैज 4 मेजर पार्ट्स। हमारे स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। कई एनसीईआरटी में पुरानी वाली में 3 थे, बट अब 4 कर दिए हुए हैं, तो 4 ही लेकर चलना है आपको। अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द इसोफेगस ओपन, अ फंडिक रीजन, एक बॉडी रीजन होता है, बॉडी, और एक पाइलोरिक पोर्शन होता है। मेन सेंट्रल रीजन कौन सा है? बॉडी, ठीक है। पाइलोरिक पोर्शन होता है जो ओपन होता है इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में कौन सा रीजन ओपन होता है? पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक, ठीक है। कौन से स्फिंक्टर से? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। Okay, small intestine is distinguishable into 3 regions: a C-shaped duodenum, okay, a long coiled middle portion jejunum, okay, and a highly coiled ileum. Ileum बिल्कुल लास्ट